So this is the research. Verbal is just 7%. And non-verbal is 38% is what? That rhythm and volume. Whereas 55% is all your facial expression, your body language. प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर हमने बात की, वी नीड टू डेवलप, हमने लैंग्वेज पे बात की. प्रेजेंटेशन स्किल्स में आवर चिल्ड्रन नीड मेंटोरशिप, उन्हें असातिज़ा की मेंटोरशिप चाहिए. उस प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर आपसे बेहतर उनको कोई गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन अ प्लेस. हमारे पास डिफरेंट रीजन से बच्चे होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स. The moment they are on the rostrum, we don't know. They are on the paper, they are fine, they are excellent, they are A grade. But they are on the rostrum, the moment they are handling the stage, they are presenting themselves. What happened? Yes, it should start with the school, with the colleges. It is not the responsibility of the university teacher. But if it's too late, still it's not late. What we need to develop is take the back seat and let me give them to improve their presentation skills. Technicalities पे आए तो students still don't know how to make the PowerPoint slides. They don't know what is the transition between one slide to another slide. एक slide अगर हमारी लाला मुसा जा रही है तो दूसरी चीजों की मिलिया जा रही है, right? So this kind of a thing. But we need to how to actually compose all the content, how to compile from one slide to another slide. स्लाइड के ऊपर कितना मटेरियल लिखना चाहिए, how to write in bullets. We cannot write the whole content. How to write in bullets, how to write even words. If we all research shows कि आज student का retention span, can you imagine कितना है? Will you please tell me what is the retention span today of student? Any rough estimation? Yes? Anyone? 2 minutes. 2 minutes. G. Yes? 15 minutes? It's 6 seconds. It's 6 seconds. And we are living in a world with the flux of information. Now, that's the reason that every teacher, whether we are handling the teenagers, we are handling the college student, university student, what we need is that transition, smooth transition from one strategy to another, from one activity to another, from one task to another, in order to make them engage. Because they are, research shows that वो maximum students आज हमारे पास visual learners, they are not auditory, कि जो सुन के समझ रहे हैं, they are visual learners. So visual learner के लिए we need to prepare all those, you can say the photos, the videos. So we take all these are called scaffolding for learning. जैसे building बनती है, तो obviously you need some scaffolding. बिकॉज के क्या उसकी थ्योरी है कि हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक डेवलप करते हैं, isn't it? You've started ना, तो इट्स जस्ट लाइक एक बिल्डिंग है, उसकी स्कैफोल्डिंग, हम वो उनको स्कैफोल्डिंग देते चले जाते हैं सो दैट लर्निंग टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप. और फिर अकॉर्डिंग टू विगोस्की हम क्या करते हैं कि फिर हम वो स्कैफोल्डिंग को हटाते हैं, फिर देखते हैं लर्निंग कितनी है, फिर हम दूसरी स्कैफोल्डिंग हटाते हैं और वो इसको कहता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि ये वो जोन है, ये वो एरिया है जो इसकी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है. और इसके अंदर फिर इंडिपेंडेंट उसने कितना डेवलप किया, स्कैफोल्डिंग के साथ कितना किया, देन यू माइनस एंड यू फाइंड दैट दिस इज द रियल लर्निंग. In flight is that when they are presenting, we talk about it, the communication, we talk about the non-verbal skills, we talk about that confidence they need. और वो जुबान सबसे बड़ा मसला है. यकीन मानिए, आप एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर इसको, अगर कोई पश्तून है तो कर ले एक दफ़ा पश्तो में प्रेजेंटेशन, अगर कोई पंजाब से है तो एक बार उसको परमिशन दे और फिर उसको गाइड करे विद. अगर कोई उर्दू ही बोल सकता है, why only English? So yes, English is important, but let the concept clarity comes first. And let them free to express themselves. Confidence will definitely. We will talk about with professional ethics. I often talk to my teachers. When you enter the gate of any institution, you have child at home, maybe in emergency, somewhere. बहुत बच्चा आपका बीमार है,
आपकी लेट्स से मेरे पास कोई लड़ाई चढ़ रही है, कुछ भी मसला है, कोई इन-लॉज के साथ प्रॉब्लम, द मोमेंट यू आर एंटरिंग द इंस्टीट्यूशन you actually place that face somewhere and you wear a mask. And yes, I'm natural. I have my responsibilities for this institution. And you wear that mask. You enter the gate, maybe you have some duties. And maybe you are forgetting some of the duty. Maybe you have some mistake in this morning. And you are being answerable. The moment you are actually facing that kind of a disrespect for you, immediately when you are coming to your classroom, आपको लगता है गेट से मैंने एक मास्क पहना और मैंने अपने घर की वो तमाम टेंशन्स को वहाँ पे छोड़ा, लेकिन आगे आके मैं शायद कुछ बोली, मेरे से घटिया बोलना, मेरे से कुछ मिस्टेक हुई, कोई ऐसी बात हुई, तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, तो फिर मैंने जब क्लासरूम में जाना है तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या कहती है कि मुझे वो मास्क फिर उतारना है और एक नया मास्क खरीदना है फॉर द क्लासरूम, फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ माई मदरलैंड। और वो मास्क इज बेसिकली योर इमोशनल इंटेलिजेंस। और आज का दौर उन लोगों का दौर है जो अपने इंटेलेक्चुअल और इमोशनल फेजेस को बैलेंस करते हैं, अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करके चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसेस के 5 फैक्टर्स मैंने यहाँ पे दिए, स्टार्टिंग की सेल्फ अवेयरनेस से। सेल्फ अवेयरनेस पे वी टॉक अबाउट अगेन, वी स्टार्टेड विद खुद शनासी, वी स्टार्टेड विद टीचर एज ए मॉम, जिसको हमने इकबाल के फख्र के साथ जोड़ दिया कि टीचर तो वो है कि जो वासिफ अली वासिफ एक इंग्लिश के टीचर, कहाँ वासिफ हजरत वासिफ अली वासिफ तो कहाँ से कहाँ तक का सफर एक उस्ताद करता है, उस्ताद का। सो सेल्फ अवेयरनेस तो जी पहली सी। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर है सेल्फ रेगुलेशन, दैट इज योर सेल्फ मैनेजमेंट। पीपल से दैट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। If you do not manage the time, you're not a successful teacher. Believe you me, you cannot manage the time if you're not good at your self-management. How much you are organized your documents, even in the cupboard, the wardrobe at your home. Right? So, what is important is the self-management, then is the time management, and then is automatically is the life management. Empathy के ऊपर हमें बहुत ये वो सलाहियत है जो बहुत कम लोगों को अल्लाह नवाजता है, लेकिन ये सीखी जा सकती है। ये ऐसी सलाहियत है जिसको सीखा जा सकता है सिर्फ दर्द महसूस करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी कुव्वत क्या कहते हैं वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा कि सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है, और वही हमें कहीं ना कहीं लैक कर रही है। आज आप आए होंगे रोड्स पे, देख लें हमारे बहुत क्लियर है हमें कितना टॉलरेंस है, कितना हम एक दूसरे की गाड़ी, कितना लेन और लाइन का ख्याल रखते हैं। आई वेंट टू उज़्बेकिस्तान जस्ट फ्यू डेज बैक, देयर इज अ बिग डिफरेंस एंड बिलीव यू मी कि अगर किसी ने सीखना है कि खुश कैसे रहना है, तो इतने कम पैसों में चलने वाला वो मुल्क जिसकी करेंसी भी इतनी लो है, खुशी अगर सीखना है ना कि जिंदगी में मुतमईन खुश कैसे रहना, go and visit France. This I have just seen their people, how they are welcoming towards the tourists, how they have that kind of sense, civic sense of bharpoor, social ethics are there. So we need to definitely हम कर रहे हैं, we are not at somewhere you can say कि हम बहुत पीछे हैं, we need to develop some methods. मैं इसके ऊपर बहुत काम किया क्योंकि हमारा तो मोटो है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। सो मैं इसके ऊपर कि हमें आज डॉक्टर इंजीनियर उतने ही चाहिए जितने हमें सोशल एथिक्स के ऊपर मेंटर्स, जो हमारी सिविक सेंस, हमारी सोशल एथिक्स को बेहतर कर सकें। देन इज इंटरनल मोटिवेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ एवरी टीचिंग एक्सपीरियंस। ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, बट आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक, क्योंकि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ बहुत जरूरी है। देयर इज अ विजन ऑफ everything. There are theories at the back. I'm not standing and just saying everything for my own sake that this is discovered. No. Kant आया और उसने कहा कि आपके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं और बाकी के जो सोशल एथिक्स हैं वो बेस्ड करते हैं रूल बेस्ड, कि रूल्स सेट होते हैं, रूल्स पॉलिसीज रेगुलेशंस बनती हैं और फिर आप Aristotle said that it is character based and Mill said that it is end based, that the end results, जैसे हमने डैरन हार्डी की जो
वीडियो देखी जिसमें वी हैव कम टुवर्ड्स दैट एक्यूमुलेशन ऑफ चॉइसेस। एक इंसान की पर्सनालिटी को अगर आपने असेस करना है, यू वांट टू नो कि ये बंदा कितना कामयाब है, तो डेफिनेटली वन थिंग यू नीड टू सी, चॉइस मेकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, उसने जिंदगी में कैसे फैसले किए। सो दिस हियर कम्स दैट दीज थ्री स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू कि या तो एक्शन आपके ये रूल बेस्ड हैं, एथिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, या करेक्टर या एंड बेस्ड। एंड बेस्ड इज ऑल अबाउट व्हाट डेरिन सेड, जी हमें आगे लेके चलते हैं, दैट कम्बिनेशन ऑफ द चॉइसेस एक्चुअली मेक योर सक्सेस ब्यूटीफुल, जैसे वो कमेटी की बात है। नेक्स्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर ही हम देखेंगे और उसमें हम बात करेंगे एनिमल फॉर्म। अगर किसी ने पढ़ा, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। हमारे लिए समझना मुश्किल है, हमारे मुल्क में बहुत सी जगह पर ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। So some kind of favoritism at times in the classes, some kind of you can say gendered, हम कभी कभी sympathy, ये इसको मैं empathy नहीं कहूँगी, this is not empathy, this is being sympathetic with some of the gender discrimination. So yes, where it is required, it is different, but in case of scoring, in case of results, this is professional ethics. Why we make a code of conduct, where we need to see हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल एथिक्स आपके मेजर करने के लिए हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑलरेडी देयर आर पीपल इन द एडवाइजरी बोर्ड हु मेक द कोड ऑफ कंडक्ट, एंड दिस इज द रियल इम्पैक्ट जो हम तरबियत की आज बात कर रहे हैं कि आज स्टूडेंट्स के अंदर हमें तरबियत चाहिए, तालीम तो है, तरबियत दिस कम्स विद दिस, बट इफ वी आर फुलफिलिंग नेक्स्ट इज तीन तरह से जो हम इसको देखते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है एंड कोड ऑफ कंडक्ट। आई बीन पार्ट ऑफ अ टीम जहाँ पे मैंने कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन किया, यही एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट में आपके probably you will be having your code of conduct here as well. From the very dress code towards the social ethics, toward the results, toward the policies for the leave, everything has been designed. But believe you me, it is not just for black and white. In the classrooms, जैसे मैंने मास्क की बात की ना, just like that, we need to be unbiased. At times we as teachers, we have the perceptions, we have the hollow effects with us. इंसान है ना, पता है, गलतियाँ तो होती हैं और इंसानों से होती हैं, और टीचर इंसान होते हैं, तो फिर जब टीचर इंसान होते हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमसे गलती हो? हमसे गलती वहाँ होती है जहाँ हमें ये लगता है कि क्लासरूम के अंदर सबसे अच्छा बोलने वाला बच्चा पेपर में भी सबसे अच्छा काम करेगा। At times it is the other way around. Very talkative, very, you can say, for students, good response, giving everything. But when in the exams, when the paper is there, तो फिर आपको लगता है कि yes, conceptual clarity तो इतनी थी नहीं, concept भी weak थी. So this kind of, so what is this? If I have this hollow effect, if I have this effect that yes, all is good because she was good in the class, I have this in the subconscious of my brain. Brain आपको पता है, tip of the iceberg is something else, and the rest is something else. तो अगर मेरे पूरे साल में वो जो आइसबर्ग का नीचे के पार्ट हैं, जिसमें सारी मेरी प्रेफरेंसेस वो बच्चे रहे हुए वो हैं, तो शायद मार्क्स देते हुए मेरे हाथ खुल जाए, शायद मैं वहाँ पे वो अनबाइस्ड होना भूल जाऊँ. Okay, so this is also the part of that code of conduct. This is also our profession. जी, next one. There's a formula. This I've just designed for us teachers. We need these two things multiplying every day according to Hardy's compound effect. And with this compound effect, the motivation is raising every day. अच्छा, मोटिवेशन कोई ऐसे नहीं है कि कोई आके झोली में डाले. इसको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत एक्सपीरियंस किया. हम जब बहुत डाउन होते हैं ना, तो हम कदा ताल्लुक हो जाते हैं. What we need to build is the relations. आप एक लम्हे के लिए भी आंखें बंद करें, आपके सामने वो बेहतरीन कोलीग आएंगे
जो आपके साथ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो आपके वेल विशर, टेक देम अलोंग विद दिस फ्लाई। मोटिवेशन इज बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। आपकी मैनेजमेंट की तरफ से एक दिया हुआ सर्टिफिकेट, व्हेनेवर यू हैव अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, उनको अपने कमरे में वहां सामने रखें जहां से देख के आपको हर वक्त मोटिवेशन आए। हर दिन आपका आगाज उनके ऊपर एक नजर डालिए और फिर कीजिए, और फिर देखिए मोटिवेशन का लेवल मल्टीप्लाइड बाय योर ability you cannot say. Definitely every day we are actually adding to the ability. We all are here gathered just to learn from each other. So your ability is innate, one thing is else, and the other is you learn from the environment. Both. Please इसको क्लिप कीजिए ताकि पूरी डाल। It comes towards your performance, but what is ability? This I have realized. Your ability is actually on these three pillars. Why I have added technology, we have discussed it. This era is, when we talk about flipped classroom, when we talked about inclusive education, when we talked about that 6-second retention span of the students, when we talk about the social media, digital print media, everything, so definitely technology, we all are surrounded. A student of mine said, "Madam, ये BG की बात आप कह रही हैं, what is BG?" अब मैं मैडम, it means before Google. We're talking about something before Google. देखिए, आफ्टर हमें AD हमने सुना, बिफोर क्राइस्ट सुना, BC सुना. Now students are before Google. So this is BG, right? So are you talking about before Google something? So Google is everything for them. It's not everything. So let me guide. हमारा actually अब काम ये हो गया facilitators वाला. They are bringing all this information, लेकिन अगर हमने वो information नहीं देखी तो हम उसकी authenticity check ही नहीं कर सकते. We need to check the authenticity of the information if we are in connection with that information. Technology. Role clarity is very important. आपका रोल सिर्फ अपना करिकुलम पढ़ाना है या कहीं तरबियत है, और उस तरबियत के अंदर कितने % आप अपना इम्पैक्ट दे रहे हैं बच्चों को, कि वो निकल के ये इदारे छोड़ के जा रहे हैं लेकिन उनके दिलों में आप बसते हैं. दिस इज एक्चुअली देन इज द स्किल्स के ऊपर वी टॉक अबाउट इट. दिस academia and industry difference is all about the gap if you fill are the right skills. Skills नहीं है, डिग्रीज हैं, लाइनें लगी हैं इंटरव्यूज के लिए. What we are actually focusing today in all the universities is the skills. And for that, first of all, we actually should be skilled. We should know that how to use Twitter, how to use Google for the authentic material. What are the websites for that? What is going on in Finland? What is going on in Malaysia? Why they are actually raising? Why Finland is ranking education system? And this carrot is obviously. I will end here with Frost this line that what I did in my career, and this is what is. It's one thing is that इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, यकीनन पहले दिन से इंसान के सामने दो रास्ते थे, एक नेकी का और एक बुराई का. तो हमने दुआ की हमेशा, कुरान खोला ये सूरत के साथ कि हमें नेकी के रास्ते पर. ये एक और डायमेंशन है, ये एक नई डायमेंशन है, आज के दौर की डायमेंशन है. फॉल्स पॉजिटिविटी की बात हमने कंपाउंड इफेक्ट की बात की. ये उस दौर की बात है जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, जिस दौर में हम आज के लिए काम नहीं कर रहे, आने वाले वक्त के लिए काम कर रहे हैं. उस दौर के सामने जो दो रास्ते हैं वो नेकी बदली नहीं है. वो नेकी के अंदर से एक और रास्ता जो दो रास्तों में चल रहा है वो दोनों सही है. उन दो सही में से कौन सा सही है? हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू ब्रिंग दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स, हाउ टू ब्रिंग दैट इक्विटी फॉर माय स्टूडेंट्स, हाउ टू ब्रिंग दैट परफॉर्मेंस, that tarbiyat thing for my students, how to actually bridge that gap of industry and academia with all these skills of mine for my students. This is actually the less traveled road which we will make the difference, inshallah. Jazakallah.